ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ESS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਕੋਨਿਕਾ ਸੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ESS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ESS ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਡਾਈਸੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਇਸ ਟਾइम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ कनाडा? करंटली जो कनाडा में अपडेट्स आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बच्चों को मालूम भी होंगे, उनको पता भी है कि कोटाज एलोकेट हो चुके हैं हर एक प्रोविंस को, जिसमें ओंटारियो जो है उसे कोई कोटा अभी तक नहीं मिला है। सेकेंडली PAL लेटर्स रिक्वायर्ड है आपकी वीज़ा फाइल में। एक डॉक्यूमेंट और ऐड हो चुका है, दैट इज़ PAL। प्लस जो आपकी IELTS की रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं सेम ही है, विच इज़ 6 ईच ओवरऑल इज़ द रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। एंड GIC बच्चों का डबल हो चुका है, दैट वाज अर्लियर $10,000, अब वो 20,635 हो चुका है। तो ये सिनारियो सेम ही है। जो एक चेंज, मेजर चेंज जो आया है वो PAL लेटर का आया है। PAL ਲੈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰमेशन ਹੋਏਗੀ? PAL लेटर बेसिकली प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, जिसके बिना हम फाइल लॉन्च नहीं कर पाएंगे बच्चे की। दैट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द लॉन्चमेंट। जैसे हमारे पास GIC सर्टिफिकेट आता था, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA आता था, वैसे ही अब एक PAL लेटर भी चाहिए जिसके बिना वी कैन नॉट लॉन्च दी फाइल। वो पर्टिकुलर कॉलेजेस ने एलोकेट करना है फॉर द स्टूडेंट्स, जिसका कोई पब्लिक कॉलेज के पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है एज सच। जिन स्टूडेंट्स की हमने एप्लीकेशंस अभी भी अप्लाई करी हुई है एंड वी आर वेटिंग फॉर द PAL लेटर्स फॉर देम। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ PAL ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ PAL ਲੈਟਰ ਹਜੇ नहीं आ रहे कि ਉੱਥੇ ਈਜ਼ਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? नहीं, PAL लेटर्स आ रहे हैं, वो बंद नहीं हुए हैं, बट वो टाइम ले रहे हैं। कितना टाइम लाइक? उनको टाइमलाइन एज सच कोई डिफाइन नहीं है। इट कैन कम इन 15 days, इट कैन टेक लॉन्गर टाइम एज वेल। वेयर ESS ग्लोबल के पास अपॉर्चुनिटी है टू गेट द PAL विद इन 1 day। ओके, राइट। सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी विच द स्टूडेंट कैन इन कैश। ਦੈਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਊ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ESS ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ PAL ਲੈਟਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 3 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? जो हमारे पास कॉलेजेस अवेलेबल है इस टाइम पे फॉर प्रोसेसिंग द स्टूडेंट एप्लीकेशंस, उनका जो टैट है फॉर ESS ग्लोबल एक्सक्लूसिवली इज़ फंडिंग। ठीक है। तो जब आप हमारे साथ एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, विच इज़ टू गेट द PAL विद इन 1 day। ठीक है जी। LOA आपका विद इन 1 day आ जाता है। उसके बाद फीस जो है वो आप आफ्टर वीज़ा पे कर सकते हैं। तो इनिशियली जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी दैट इज़ द GIC। रेस्ट जो है वो सारा का सारा आपने आफ्टर वीज़ा जो है वो पे करना है। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। सो इस बारे की कहोगे तुसी? प्राइवेट कॉलेज ये बिल्कुल ठीक है कि वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो आपने स्टडी प्राइवेट कॉलेज से करी है वो ज़ीरो नहीं है। आपका जब बाद में आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है या PR के लिए अप्लाई करना है, दैट डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड। वो आपको पॉइंट्स कैरी करता है। तो वो आपके PR में उतना ही हेल्प करेगा जितना कि आपने जो भी पब्लिक कॉलेज से जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा करा है, उतना ही पॉइंट कैरी करता है फ्रॉम दी प्राइवेट कॉलेज। इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू अप्लाई फॉर दी वर्क परमिट। ठीक है जी, वो कर सकते हैं आप। तो देयर इज़ नो कंसर्न एज सच। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੀ ਹੈਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਕਿਊਬੈਕ ਐਂਡ ਵੈਂਕੂਵਰ BC।
ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ESS ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, PL ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ बचता हैगा आ? PL लेटर आने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू लॉन्च द फाइल आपकी एम्बेसी में लगनी है एंड आपने आउटकम लेना है। अब आउटकम लेने में आपका वीज़ा जो है वो विद इन 10 डेज आ सकता है, इट कैन टेक लॉन्गर ऑल्सो, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी वंस द फाइल इज देयर इन द एम्बेसी। तो आपके पास PL के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू लॉन्च द फाइल, दैट्स इट। ਓਕੇ ਅੱਛਾ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं है? मास्टर्स वालों को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो आपको PAL की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका जो फीस का कंसर्न रहता है कि मास्टर्स के लिए फीस इज़ हायर, तो एक वो कंसर्न है क्योंकि आपका जो बजटिंग है उसके अकॉर्डिंग यू डिसाइड वेदर टू गो इन और नॉट। तो बस वही एक कंसर्न है, PAL लेटर का कोई कंसर्न नहीं है मास्टर। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ +2 ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ESS ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਰੱਖ ਸਕੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚॉइस कंट्री ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ? कनाडा इज़ टोटली सेफ जाने के लिए, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। रीज़न बीइंग कि वो आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने केस को कैसे प्रोसेस करना है। अगर आप पब्लिक कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, आपका ऑफर लेटर आने के लिए जो टैट है 4 to 6 वीक्स का है। पहले आप वहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद आपका LOA आएगा, फिर आपका PL लेटर आएगा। जो टाइम कंजम्पशन है, द डेज, नंबर ऑफ डेज, जहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कह लो उसको एडवाइजेस मिलनी शुरू हो जाती है या वो कुछ रिसर्च करना शुरू कर जाता है या कुछ भी होता है कंसर्न XYZ, राइट। तो वो टाइम फ्रेम जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं टू 10-15 डेज बाय अप्लाइंग थ्रू ESS ग्लोबल। तो आप कहीं पे भी हमारी किसी भी ब्रांच में जाके बच्चा अप्लाई कर सकता है इस इनटेक के लिए। September 24 इस टाइम पे अवेलेबल है, जो कि पब्लिक कॉलेजेस में अगले हफ्ता 10 दिन की बात है वो बंद हो जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम September 24 इनटेक अभी भी अप्लाई कर सकते हैं एंड विद इन 10 to 15 डेज, 15 डेज का हमारा मतलब टैगलाइन चल ही रहा है ऑलरेडी इन द मार्केट, राइट। तो वो अभी भी फॉलो हो रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि किसी के पास सीट्स है अवेलेबल, किसी के पास कोटा अवेलेबल है या नहीं। ESS ग्लोबल के पास डेफिनेटली अवेलेबल है, जितना बच्चा आना चाहता है अप्लाई कर सकता है, 15 दिन के अंदर अपनी फाइल जो है लॉन्च कर सकता है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ? ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੈਪ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? जिसके पास ओवरऑल 6 बैंड है, PT में ओवरऑल 60 है, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। गैप जो है वो एक्सप्लेनेबल गैप होना चाहिए कि उसकी एक्सप्लेनेशन बच्चे के पास हो, डॉक्यूमेंट्स बच्चे के पास हो, क्योंकि हम कभी भी कहीं पे भी अप्लाई करते हैं विद गैप तो वो विदाउट एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपका प्रॉपर गैप के साथ डॉक्यूमेंट हो, आपके एकेडमिक्स 10th 12th आपके एकेडमिक्स लेटेस्ट जो है 12th हो, 12th पास आउट हो, उसके बाद गैप एक्सप्लेन करके यू कैन अप्लाई। ਓਕੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? स्पाउस अभी जो है वो मास्टर्स डिग्री के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर द न्यू अपडेट जो 22 मार्च को रिलीज़ हुआ था। उसके बाद अब कंफर्मेशन भी आ गई है उसके लिए कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है उस पर आप स्पाउस के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, बट आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए जो IELTS रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा है, जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा है, सेकेंडली जो फीस है वो भी ज़्यादा है, राइट। तो आपको पूरा बजटिंग देख के, पूरा प्रोफाइल को देख के ही अप्लाई करना पड़ेगा। वेयर एज सेकेंड ऑप्शन कैन बी ऑफ द वर्क परमिट।
आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पाउसेस के साथ, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास प्री अप्रूव्ड LMIs भी अवेलेबल है, तो हम उसके लिए भी केस को कंसिडर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। जी ठीक है जी। सो बिल्कुल ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ESS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਨੀਚੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ UK ਤੇ ਆਨੀ ਹਾਂ। UK ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? यूके इस टाइम पे एज पर द लेटेस्ट अपडेट जो बच्चा पढ़ने जाना चाहता है आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर्स डिग्री फॉर मास्टर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग योर ईयर 12 फॉर बैचलर्स, वो बिल्कुल जा सकता है। उसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे पहले बच्चा जाता था फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, अपना स्टडी कंप्लीट करके कैन अवेल फॉर द वर्क परमिट एंड लिव हैप्पीली देयर। उसमें कोई एज सच कोई कंसर्न नहीं आया है। ठीक है, केड़ा स्टूडेंट जा सकता है? लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, मिनिमम जो बैंड रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अभी हमारे पास ऑप्शन है विद द लोअर आइल्स स्कोर ऑल्सो, आइल्स एंड पीटी स्कोर। तो जिस बच्चे के पास ओवरऑल 5.5 बैंड है, 54 स्कोर है पीटी में, वो बच्चा डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है यूके के लिए एंड सितंबर इनटेक के लिए। तो उसको बस इतना सा काम करना है, किसी भी ESS ग्लोबल के ऑफिस में जाके अपनी प्रोफाइल को असेस करवा दे एंड अपना केस स्टार्ट करे यूके सितंबर के लिए। जी, विदाउट आइल्स ऑप्शन है इस टाइम? विदाउट आइल्स ऑप्शन नहीं होगी इस टाइम पे, क्योंकि आप जब विदाउट आइल्स इन कैश करना चाहते हो, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल हाई होना चाहिए। प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिस्कशन रहता है। ओके ठीक है जी। सो मतलब कि विदाउट आइल्स फिलहाल नहीं है, पर मिनिमम ਤੁਸੀਂ थोड़े घट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ क्योंकि हो ओवरऑल जब आप एजेंट के पास जाते हैं तो ओवरऑल वो आपसे 6 6.5 बैंड्स मांगेगा ही मांगेगा, वेराज हमारे पास ऑप्शन है विद द लोअर स्कोर्स। ओके, लोअर कितने? 5.5 ओवरऑल। ओवरऑल 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ सकता है। तो गैप चलेगा? गैप अगेन एक्सप्लेनेबल होना चाहिए कि आपने क्यों गैप, आपकी स्टडीज़ में गैप किस रीज़न से आया है, वो होना चाहिए। उसमें आपने स्टडीज़ करी थी, वेदर कोई डिप्लोमा किया था या कोई एक्सपीरियंस कैरी कर रहे थे या कोई मेडिकल कंसर्न था, वो है। बट येस, उस पर एक कैप है। ऐसा ना हो कि 2012 पास आउट बच्चा जिसने 12th करी हो उस टाइम पे वो अप्लाई करे, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लाइक अगर जस्टिफिकेशन प्रॉपर हैगी है किसी को, फिर मैक्सिमम कितना का गैप चल रहा है? मैक्सिमम 5 years का गैप इज एक्सेप्टेबल। ओके ठीक है। तो स्पाउस ऑप्शन तो है नहीं, है ना? स्पाउस ऑप्शन जो है आपका सिर्फ मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए है या PhD प्रोग्राम्स के लिए। ओके ठीक है। और यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ? यूके इज़ इंटायरली ओपन फॉर स्टूडेंट्स। आप किसी भी प्रोविंस में जा सकते हो, कहीं पे भी। जॉब का ये कंसर्न है, बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मुझे जाते ही जॉब मिल जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप कहीं भी कंट्री में जाते हैं, जब हम इंटरस्टेट ही अगर चेंज कर लेते हैं तब भी हमें स्ट्रगल होता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री, तो बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है टू मेक द एडजस्टमेंट, टू लर्न द कल्चर ऑफ द कंट्री। उतना ही टाइम है जितना बच्चे को समझने में लगता है कि यहाँ के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। नहीं तो एडजस्टमेंट इज़ एवरीवेयर। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ESS ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ PL ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, LOA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, UK ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ESS ग्लोबल ਕੋਲ है? हाँ जी, बिल्कुल है हमारे पास। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू पे आफ्टर वीज़ा। जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास कनाडा में थी, वही सेम अपॉर्चुनिटी हमारे पास यूके में भी है कि बच्चा जो है आफ्टर वीज़ा जो है सारी फीसेस वगैरह पे कर सकता है। इनिशियली बच्चे को डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड करने हैं, असेसमेंट करना है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, एंड जो भी पैसा लगना है वो वीज़ा लगने के बाद हमें देगा। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ESS ਗਲੋਬਲ ਪੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करो। इनटेक ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ टाइम? सितंबर 2024 इनटेक रहेगा। अभी सीट्स अवेलेबल है, आफ्टर अ मंथ और सो वो सीट्स अवेलेबल नहीं होगी, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ UK ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡਾਈਸੀ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਓਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ सिचुएशन? ऑस्ट्रेलिया इस टाइम भी सेम सिनारियो है जो पिछले 2 महीने से चल रहा है। जो बैलेंस बना के रखा है उन्होंने 50% का, 50% वीज़ा ग्रांट्स हो रहे हैं, 50% रिफ्यूज़ल है, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेशन उनके पास डबल चला गया है। यूजुअली हर ईयर उनके पास एप्लीकेशन जाता है ऑफ 3 लाख। दिस टाइम जो एप्लीकेशन का नंबर है दैट इज़ क्लोज टू 5,90,000। तो जब आपका नंबर ऑफ एप्लीकेशन डबल होगा तो नंबर ऑफ रिफ्यूज़ल भी डबल होगा। सो दैट इज़ द सेम सिनेरियो। उसमें अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल को देख के वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। द आंसर इज़ नो। दैट डिपेंड्स कि जो भी उनका ओवरऑल सक्सेस रेट है उसको उन्होंने वही मेंटेन करके रखा हुआ जो पिछले कई सालों से मेंटेन था। बस जो चेंज आया है दैट इज़ नंबर ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ इंक्रीज, सो द नंबर ऑफ रिफ्यूजल्स हैव आल्सो कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ 50%, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਕਮ ਫਰਸਟ ਗੈਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? जो रिजेक्शंस बेसिकली है वो ऑस्ट्रेलिया वांट कि उनके पास एक जेन्युइन स्टूडेंट पढ़ने आए, जिसके दिमाग में पीआर चल रही है या जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं बाद में वर्क परमिट को इनकैश कर दूं, वहाँ पर ही एक रेड फ्लैग आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनको जेन्युइन स्टूडेंट है। अभी जो उन्होंने नए रूल्स अप्लाई करे हैं दैट इज़ जीएसटी। पहले वो जीटी था जिसको जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट बोलते हैं, अब जेन्युइन स्टूडेंट एंट्रेंट है, राइट? तो वो एक जेन्युइन स्टूडेंट को ही ऑस्ट्रेलिया बुलाना चाहता है जिसका इंटेंशन पढ़ने का है। ठीक है, इसमें आपके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। दैट शुड बी 6.5 नो लेस देन 6 फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, 6 ओवरऑल होने चाहिए फॉर बैचलर्स प्रोग्राम। परसेंटेज जो है सेक्शन वाइज उन्होंने डिवाइड करी हुई है इंडिया की यूनिवर्सिटीज़, अकॉर्डिंगली आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। फॉर ईयर 12 लेटेस्ट पास आउट ही लेते हैं वो। फॉर एग्जांपल अभी 2024 के रिजल्ट्स आउट होने हैं नेक्स्ट मंथ, तो वो बच्चा बिल्कुल अप्लाई करे, अपनी आइल्स की तैयारी अभी शुरू कर दे कि हाँ जी मैं प्रिपेयरिंग फॉर द आइल्स, गेट द स्कोर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में स्कोर नहीं आ पाता है, तो उसको अगर रीअप्लाई करना है बिफोर गेटिंग द रिजल्ट वो अप्लाई कर सकता है। एंड सिनेरियोज आर ऑलरेडी, मतलब जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है दोज आर सेम, नो नथिंग हैज़ चेंज्ड एज सच। एक जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरव्यू है कि जी एम्बेसी जो है वो इंटरव्यू ले सकती है। दे हैव गिवन सेट 6 क्वेश्चन, दे हैव गिवन सेट 6 क्वेश्चंस, जिसमें से 4 क्वेश्चंस इज फॉर एवरी स्टूडेंट, वेदर अप्लाइंग फॉर फर्स्ट टाइम, वेदर अप्लाइंग फॉर सेकंड टाइम। उसके बाद जो बाकी के 2 सवाल है, अगर आपका रिजेक्शन है तो 1 सवाल बढ़ जाता है, अगर कोई और आपका स्पाउस है बीच में इंक्लूड तो 1 सवाल और बढ़ जाता है। तो देयर इज टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चंस। तो वो आपको इजीली अवेलेबल है। सारी यूनिवर्सिटीज़ ने फॉर्म्स जो है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करती है, तो बच्चा फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर दैट क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੀਟੀ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਜੀਐਸਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? जीएसटी में जो मेजर चेंजेस आए हैं दैट इज़ फॉर द इंटरव्यू ओनली, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, उसमें आपका जो बेसिक प्रोफाइल है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर एकेडमिक प्रोफाइल। उसके बाद आपके फाइनेंशियल्स का कंसर्न आ जाता है, आपके स्पॉन्सर्स का कंसर्न आ जाता है कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उनकी इनकम कितनी बनती है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन जीटीई वाली ही है, क्योंकि हम लोग इंडिया असेसमेंट लेवल 3 पे आता है, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट उतनी है। अब बच्चों को एडवाइजेबल क्या है कि वो असेसमेंट लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसमें से मोस्टली ग्रुप ऑफ 8 आती है। तो अब जो पहले ऑस्ट्रेलिया का बच्चा होता था, हमारे पास आता था कि मैम मैं पर्टिकुलर इस प्रोविंस में जाना चाहता हूँ, दैट विल नॉट बी द सिनेरियो, क्योंकि हर एक प्रोविंस पंजाब हरियाणा से बच्चा नहीं लेता है। ठीक है, प्लस आपका जो असेसमेंट लेवल जो चेंज हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के, दो आपका डीएचए ने मना कर दिया था कि असेसमेंट लेवल चेंज नहीं होने वाले हैं, बट स्टिल उन्होंने एक नई लिस्ट निकाल दी फॉर दी असेसमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चा शुड अप्लाई फॉर असेसमेंट लेवल 1 एंड दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡ ਆਨ ਹੋਇਆ, ਐਸਓਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, यूएसए ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ फॉर्म फिल करके देना है ना जी। वो आपका फॉर्म के फॉर्मेट में ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको फॉर्म में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो आपके जो आंसर्स है उसी में जाता है। बच्चे का अगर इंटरव्यू आता है दैट इज़ नॉट फेस टू फेस, वो आपका टेलीफोनिक रहेगा या फिर वो ऑन वीडियो कैम रहेगा।
तो उसमें कोई कंसर्न नहीं है, बच्चा इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने भी वो क्वेश्चंस जो है अपने जीएस फॉर्म में इंक्लूड कर दिए है। ओके, लाइक फिक्स क्वेश्चंस ने, है ना? दोज आर फिक्स। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡ ਆਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ करना। जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स रहेगी बच्चों के लिए, दैट इज़ मेंशन ऑन द वेबसाइट, राइट? वो हमें पता ही है कि 6.5 नो लेस देन 6 होना चाहिए, बच्चे का एकेडमिक स्कोर शुड बी गुड। अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक प्रोफाइल, बच्चे के जो स्पॉन्सर्स हैं, अगर आप सिंगल केस अप्लाई कर रहे हो तो इट शुड बी 10 लाख के करीब। आपके पास उनके एविडेंसेस होने चाहिए। जैसे हम बोल देते हैं कि मम्मा पापा का बिजनेस है, बट देन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है टू प्रूव इट। हमारे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होता, हमारे पास किसी तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस चीज़ को ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक नेगेटिव फॉर्म में देखता है, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, इनकी दुनिया में ये है कि जब एक पर्सन बिजनेस कर रहा है तो वो हर एक चीज़ में इन्वेस्ट करेगा, नॉट ओनली ऑन द बिजनेस। उनके पास रजिस्ट्रेशन होगा, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट्स होगी। दी आजकल बच्चा गूगल पे यूज़ करता है टू पे इवन 10 रुपीज़, तो उसकी एक यूपीआई स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि ऑनलाइन दिखती हो, राइट? आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन है फॉर एवरी बिजनेसेस, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बच्चा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता है तो उनके जे फॉर्म्स जो है वो बैंक में होने चाहिए। द अमाउंट शुड बी सेम, या जो भी आपका बनता है, राइट? दे शुड हैव पर्टिकुलर 3 years का रिकॉर्ड टू शो, क्योंकि कहीं हमारे इंडिया में क्या है, एग्जेम्प्टेड है एग्रीकल्चर इनकम, तो हमारे पास ITRs नहीं होती है, बट बच्चा उसका रिकॉर्ड शो करेगा तो प्रोफाइल जो है वो निकल जाती है। वो हमारा काम है, ESS ग्लोबल का काम है कि हमने प्रोफाइल को आगे कैसे थ्रू करना है। तो द पर्सन हु इज़ जेन्युइनली लुकिंग टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपने बोला कि क्रीम प्रोफाइल होती है, बिल्कुल सही बात है, बट उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स जो है, फॉर्मेट जो है वो हम बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो बच्चा अभी भी अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, लुकिंग एट द सिनेरियो कि रिफ्यूज़ल है या क्या है, डेफिनेटली अप्लाई करे, डेफिनेटली उसको जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिफ्यूज़ल्स को देख के वो अप्लाई ना करे, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन गुड होगा तो वीज़ा आएगा। अच्छा, राइट, मतलब कि एक बार रिफ्यूज हो गया देन आप री अप्लाई कर सकते? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में वी कैन नॉट री अप्लाई। ओके, ठीक है जी। सो बिल्कुल जी, क्योंकि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, तो ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਗੈਪ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵਧੀਆ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ESS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਪਾਊਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ऑस्ट्रेलिया से स्पाउस जा सकता है जी। जी, आफ्टर +2 भी या आफ्टर ग्रेजुएशन? आफ्टर ग्रेजुएशन जाएगा। प्रोफाइल जो है स्पाउस का, एटलीस्ट स्पाउस जो है ग्रेजुएट हो। अगर वो अपना बिजनेस कर रहा है देन अगेन आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। अगर वो जॉब कर रहा है तो सैलरी जो है आपके अकाउंट में होनी चाहिए जी। सो थैंक यू सो मच कॉनिका, तुसी ये सारी इन्फॉर्मेशन साडे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच। सो मैं स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ESS ਦੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਆ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਐਂਡ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਮਾਈ ਰੋਂਗ ਕੋਰਸ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ESS ਗਲੋਬਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸੁਖਜੀਤ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ESS ਗਲੋਬਲ ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਕੋ ਗਿਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ESS ਗਲੋਬਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ESS ਗਲੋਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ 2 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ESS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਨਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ESS ਗਲੋਬਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ESS ਗਲੋਬਲ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਈ ਮੈਮ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆਫਟਰ 10 ਡੇਜ਼। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ESS ਗਲੋਬਲ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। Hello Mamta, many congratulations to you both for getting their student visa for Australia. Thank you, ma'am. Okay, how was your experience with ESS Global? The overall experience is really very good. The team is very supportive and believing also. So Mamta, आपने अप्लाई किया है कर्टिन यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की लेवल 1 यूनिवर्सिटी है। आपका Yes, ma'am. कैसा एक्सपीरियंस रहा विद कर्टिन यूनिवर्सिटी? जैसे कि कर्टिन आपने बताया कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे हमारा विद इन 2 डेज़ हमें मतलब ऑफ़र लेटर भी आ गया और विद इन 5 डेज़ हमारी GT भी क्लियर होगी और विद इन 5 डेज़ ही COE भी हमें रिसीव होगी और 15 to 20 डेज़ ही लगे हमें हमारा वीज़ा आने के लिए। तो कर्टिन यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा हमारा। Okay, so आपको कोई इंटरव्यू कॉल आया ड्यूरिंग योर प्रोसेस ऑफर लेटर से लेके GT तक? No ma'am, there was no call. I was at that time I was really shocked but I was prepared also but call नहीं आई तो खुशी भी थी बट प्रिपेयर्ड भी थी तो अच्छा भी लगा। बाकी तो अच्छा एक्सपीरियंस था कर्टिन के साथ। ममता, आपकी प्रोफाइल में आपने 3 डिग्रीज की हुई हैं, 1 बैचलर ऑफ साइंस, देन आपने मास्टर ऑफ साइंस भी किया है, उसके बाद BEd एंड आपके पास 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। यस मैम। तो आपको क्या लगता था कि आपको ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन मिल जाएगी, आपकी निकल जाएगी एडमिशन? जैसे कि क्वालिफ़िकेशन भी काफ़ी थी तो हम काफ़ी एजेंट्स के पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं मत आपकी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी है तो शायद आपकी ऑफ़र लेटर रिजेक्ट हो जाए और आपको शायद एडमिशन ना मिले। बट जब हम ESS ग्लोबल के पास आए तो इन्होंने काफ़ी बिलीव दिखाया कि नहीं आपकी मतलब एडमिशन भी ऑफ़र लेटर भी आएगी, सब कुछ होगा, आप एक बार मतलब हम पे बिलीव रखें। तो इसलिए ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ESS ग्लोबल के साथ भी और कर्टिन यूनिवर्सिटी के साथ भी बहुत अच्छा रहा। ओके सर, आपको क्या लगता था आपका, आप जैसे अपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया, अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्पाउस के साथ में अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा नहीं आता है, आपको क्या लगता था आपका वीज़ा आएगा? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ESS ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 101% ਆਏਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ। ठीक है, ओके। सो आपकी ओवरऑल जर्नी में आपको कोई भी 2 बेस्ट चीज़ बताइए जो आपने अबाउट ESS जो आपने फेस की है। काफ़ी सपोर्टिव है काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी बिलीव दिखाया इन्होंने शुरू से ही और हमने भी काफ़ी बिलीव किया तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, सारी टीम ने बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा उनके साथ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुरशरण सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ESS ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ESS ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ USA ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ।
ਇਨ ਜਰਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੋਏ, ਬਟ ESS ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਜਤਿਨ ਸਰ, ਮੰਨਤ ਮੈਮ ਐਂਡ ਚੀਨੂ ਮੈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ USA ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅਚੀਵਿੰਗ ਯੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ।